मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं ये शो होस्ट करती हूँ जिसका नाम है सितारे इरम के साथ, और आज मेरे लिए काफ़ी खुशी का दिन है और आज फ्राइडे का भी दिन है। तो मैं अपने जो अल्फाज हैं उनको ज़रा कंट्रोल और अच्छी अपनी फीलिंग्स जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरा जो शो है, ये शो करने का मकसद ये है कि हम जो है ऐसे लोगों से बात करें जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं और वो और से और अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं जब भी आती हूँ किसी न किसी नए सेलिब्रिटी के साथ आपको मिलाती हूँ। तो आज मेरे पास बहुत ख़ास मेहमान हैं। सर डॉक्टर प्रवीण पटेल इनका नाम है, और काफ़ी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हैं, स्वामी हैं, गुरु हैं, और इनका ताल्लुक जो है इंडिया और कनाडा से है। तो आज ये हमारे स्टेज पर मौजूद हैं। तो ये इनका एक छोटा-सा तारुफ था। तो सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि सर आप प्लीज़ अपना तारुफ करवाएँ हमारे ऑडियंस को। बढ़िया सवाल पूछा है आपने। मेरे जनरली जो मेरा तरीका होता है एज द सेलिब्रिटी गुरु ऑफ द वर्ल्ड, वो तरीका तारुफ करना करवाने का अलग है। वो मैं पहले करवाता हूँ। इसके बाद जो स्वामी विश्वा गुरु है उस नजरिए से मेरा तारुफ करवाता हूँ। ठीक है। सो द सेलिब्रिटी गुरु डॉक्टर पीपीपी, जनरली मैं स्टार वाला टी शर्ट पहनता हूँ और उसके ऊपर सूट पहनता हूँ। तो इमेज मैंने वो पहना है और मैं इंट्रो कर रहा हूँ मेरा। हेलो, Amen, Amen, Namaste. I am Dr. PPP. I am the Celebrity Guru award winning author of the book You Are the Celebrity. I am the marathon man who ran more than 25 full marathons by God's grace and your blessings, Alhamdulillah. I'm the Himalayas Guru who is climbing the Everest, the Himalayas, by God's grace and your blessings, Alhamdulillah. If the celebrity guru can write, so can you. If the marathon man can run, so can you. If the Himalayas guru can climb, so can you. Life is the movie, you are the celebrity. Life is the celebration, you are the celebrity. Life is the marathon, you are the marathoner. Life is the book, you are the author. Life is the mountain, you are the mountaineer. I am 2+ times Canadian, 5+ times international, Guinness World Records, award winning author of more than 15 books. By God's grace and your blessings, Alhamdulillah. I served in the Canadian Army as the engineer by God's grace and your blessings, Alhamdulillah. I'm making army parts every week, 5 long weeknights minimum, 8 long hours minimum every night of the week by God's grace and your blessing, Alhamdulillah. I'm the United Nations ambassador by God's grace and your blessings, Alhamdulillah. I'm the founder of youarethelelovebook.com with Jolly, Joyful, Jasmine, hashtag JJJ. My wild, wonderful wife, hashtag WWW. The love angel of the world, none other than Jasmine Patel, Pakistan Wali. I'm honored, I'm privileged, I'm humbled, I'm blessed, and I'm super excited to come live at you for the people of the world with none other than all the way from Dil Pakistan, the Allah has ever created, none other than incredible, irresistible, Iram, hashtag I, electrifying, and oh my God, I'm missing my words. Oh my God, another E I'm forgetting. So electrifying, another E adjective, and education wali, hashtag E.
So that's my intro by the celebrity guru Dr. P.P.P. Way. Now, Iramji, you want me to introduce myself as the way my another name is Swami Vishwaguru. If you allow me, I will share that way. सर बहुत इंस्पायरिंग आपका इंट्रोडक्शन था और इतनी देर तो मैंने कभी स्माइल नहीं किया जितनी देर आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। तो दूसरा वे आपने मुझे ये बोला कि जो स्वामी विश्वा वाला है मैं इंट्रोडक्शन आपका वो दूंगा। हाँ असल जी। में मैं ये चाहती हूँ कि हम क्योंकि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें जो ना एग्जैक्ट या मैं ये कहूँ कि ट्रू नॉलेज और इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप मुझे ये बताएं कि ये स्वामी विश्वा ये क्या होता है ये। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा स्पिरिचुअल नाम है जो मेरे गुरु ने दिया है। मेरे गुरु है स्वामी विश्वानंद। वो भी रेहान भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों मिल भी चुके हैं कई दफा, लंदन में मिल चुके हैं। और स्वामी मीन्स गुरु इन द डीप वे ऑफ द टीचर, जो किसी को अंधकार से, डार्कनेस से लाइट में ले जाए, वो टीचर। आप शायद इस्लाम में उसको पीर कहते होगे, और आप जानते होगे क्या क्या नाम उनको कहते हैं। मगर गुरु घंटाल वाले गुरु घंटाल गुरु की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो रियल में अल्लाह का मैसेज लेके आए हैं और भगवान का मैसेज लेके आए हैं और जीसस का मैसेज लेके आए, और जो भी जिसको भी मानता है उसका मैसेज लेके वो ऊपर वाले ने भेजा है। और बोला कि एक काम करके आओ वापस मेरे पास। तो ये बात है। तो ये बात है। गु माना डार्कनेस, रू माना लाइट। सो जो डार्कनेस से लाइट में ले जाए वो गुरु। मैं आपसे भी कुछ सीखा हो तो आप मेरी गुरु हो। आप बहुत लोगों से सीखते रहते हैं। जो सीखना बंद माना, आप माना ऊपर वाला बोलेगे भी आ जाए तो ये बात है। तो जीना बंद। अमिताभ जी ऑलवेज कहते हैं कि लर्निंग ऑलवेज, अप्रिशिएट लर्निंग एंड ऑलवेज एवरी डे लर्न समथिंग। ऐसा नहीं कि अमिताभ बच्चन इस एज में 80 साल के आसपास हुए फिर भी ऑलवेज वो कहते हैं कि यार एवरी शॉट वो देते हैं एज लाइक उनका पहला शॉट अपनी लाइफ का। हालांकि 50 से भी ज्यादा साल वो बॉलीवुड में काम कर चुके हैं, हॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं। तो ये बात है। तो दिस इज स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्वामी। आप चार्ट जीपीटी पे जाए, बहुत सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जितना डीप जाए। और भी माना कोई गुरु के बारे में जानता हो उसको पूछे, और जिसको वो अपने आप को गुरु कहता है उसके ही पूछे कि भाई यार आप अपने आप को गुरु क्यों लगा दिया अपने आप को। तो स्वामी माना यह है। विश्व माना द वर्ल्ड, यूनिवर्स, वर्ल्ड, दुनिया। तो विश्व हो गया, ठीक है। और स्वामी विश्व गुरु समझ गया। तो गुरु का भी मतलब मैंने बता दिया। स्वामी और गुरु का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। मगर मेरे लाइफ में बहुत सारे गुरु आए हैं, तो सब ने, जैसे वो है ना, वो भगवान की मूर्ति बनाते हैं, तो माना वो बनाने वाला ही वो पत्थर को उन्हें टांगता रहता है, टांगता रहता है, टांगता रहता है। और जब तक वो लोगों को उसमें भगवान नजर ना आए तब तक वो टांगता रहता है। उनको भी भगवान नजर ना आए तब तक वो टांगता रहता है। तो बस यही बात है। ठीक है सर, मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। तो आप मुझे ये बताएंगे कि हमने बहुत सारे लोगों से ये सुना, मैंने भी, कि जितने भी रिलीजन है इनमें ये डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है, ये ऐसे है, ये वैसे है। लेकिन आज तक मैं इस बात की सर्च में रही कि कोई मेरे इस सवाल का जवाब दे कि जो सारे रिलीजन्स होते हैं वो होते तो गॉड की तरफ से ही हैं। क्रिश्चियनिटी हो गया, हिंदुइज्म में भी कहते हैं कि कदीम कोई मजहब, ये जो है बहुत कदीम एक मजहब है, ठीक है। लेकिन मुझे आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि तमाम मजहबों में एक कॉमन बात क्या है। मुझे कम से कम कोई एक ही कॉमन बात कोई बता देता। मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि तमाम रिलीजन्स में एक कॉमन बात क्या है? बढ़िया सवाल पूछा है आपने। जो मैंने पाया है मेरी वो 55 लाइफ की जिंदगी में अबाउट स्पिरिचुअल पाथ में, जितना भी मैंने सीखा है, और मेरे गुरुओं ने और आप जैसे बहनों ने, माताओं ने, बेटियों ने, मदरों ने, अम्मियों ने, अब्बाओं ने जो सिखाया है, तो ये है कि रिलीजन इज लाइक द रिवर, ठीक है ना। सो दुनिया के जितने भी रिलीजन है वो रिवर की तरह है, ठीक है, ऐसे मान लो, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी इज लाइक द ओशन, ठीक है। तो जैसे सभी नदियां, ऑलमोस्ट सभी नदियां समंदर में मिल जाती है, वो तो आप मानते हो ना।
तो वैसे ही है कि सभी रिलीजन पैदा हुए और मैसेंजर्स आए, कई सारे मैसेंजर्स आए, वन आफ्टर अनदर, ऑलमोस्ट एवरी रिलीजन में। कोई मसीहा बोलते हैं, कोई मैसेंजर्स बोलते हैं, कोई बोलते हैं कि सन ऑफ गॉड बोलते हैं, कोई बोलते हैं कि एक रूहानियत अक्स आ गई, जो भी माना, जो जो नाम बताए। मगर ऊपर वाले का मकसद अल्टीमेटली वही था कि इस दुनिया मैंने दुनिया वालों के लिए बनाए हैं, आपके लिए बनाए हैं। तो अपने आप को पहचानो पहले तो। सो स्पिरिचुअलिटी आज 3 क्वेश्चन, स्पिरिचुअलिटी 3 सवाल पूछती है। मैं कौन हूं? पहला सवाल, हु एम आई। ठीक है। दूसरा सवाल पूछती है स्पिरिचुअलिटी, व्हाट आर यू डूइंग हियर? यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? ठीक है। और तीसरा सवाल पूछती है, वेयर विल यू गो? आप कौन है, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जाओगे? और ऑलमोस्ट एवरी रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड वो अपने अपने तरीके से बताते हैं, बिकॉज एवरी रिलीजन इन्वॉल्व specific century, specific time, specific location. So according to that location, according to the need of those people, because आप लता मंगेशकर को क्रिकेट सिखाओगे तो कितना सीखेगी, ठीक है? और सचिन तेंदुलकर को आप बोलो कि आप माइक है गाना गाए, तो कितने लोग उनकी कॉन्सर्ट में जाएंगे, राइट? तो यही बात है। तो अल्टीमेटली जो मैं समझा हूं, इतने डेकेड्स ऑफ डेकेड्स लगाने के बाद, लोगों से मिलने के बाद, ये है कि हु एम आई एम द सोल। मैं एक रूह हूँ, मैं एक स्पिरिट हूँ, ठीक है? केम फ्रॉम द सुप्रीम सोल, ठीक है? अब आप इस्लाम में पैदा हुई तो आपने लगा दिया कि अल्लाह ने मेरे को पैदा किया है, पूरी कायनात को अल्लाह ने पैदा किया है। कोई माना हिंदू होगा तो बोला कि राम ने बनाई है दुनिया और कृष्ण ने बनाई है, और इस देवी ने, इस देवता ने, और शिवा ने बनाई है, लॉर्ड शिवा ने बनाई है, शंकर भगवान ने बनाई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो इतना उसका एक्सपोजर रहा, क्रिश्चियनिटी में पैदा हुआ होगा और जीसस को मानने वाला होगा तो बोला कि भाई जीसस ने बनाई होगी जैसे, और जीसस को बनाने वाला भी उनको सन ऑफ गॉड मानता होगा, तो माना कि जैसे जिसने जीसस को बनाया उसी ने आप सबको, मेरे को, सबको बनाया है। तो बेसिकली ये मैं समझा हूँ, ठीक है? मगर एवरीबॉडी का पाथ सेपरेट होता है, वो समझने का मैंने वो शेयर किया। दैट डजंट मीन आपको माना ब्लाइंड फेथ से मान ही लेना है कि भाई चलो स्वामी विश्वा गुरु ने बता दिया, मैंने उनका इंटरव्यू अब बता दिया तो बस यही नहीं। ये हमारा दुनिया है, स्पेशली भारत, जहाँ इंडिया पाकिस्तान 1947 पहले तो एक ही थे, बांग्लादेश, तीनों भी एक ही थे, राइट? और बहुत सारे कंट्रीज भी उसमें साथ, अफगानिस्तान और बहुत सारे कंट्रीज हम थे, ठीक है ना? मगर अगेन इवोल्यूशन होता है, ये सब होता है, जैसे भाई शादी वादी करते अलग होते हैं तो हुए, ठीक है? उनके जख्म भी है, इंडिया वालों के साथ भी जख्म है, पाकिस्तान वालों के साथ भी जख्म है, ठीक है? मगर देखो, दैट्स द ब्यूटी अबाउट टेक्नोलॉजी, दैट्स द ब्यूटी अबाउट बीइंग ओपननेस, कि आप पाकिस्तान में पैदा हुए, मैं इंडिया में पैदा हुआ, कनाडा में रहता हूँ, और मेरे जैसे नाचिस को आप माना अपना टाइम देके, आज ही हम मिले थ्रू फेसबुक, एंड अपना टाइम दिया, अपने चैनल पे बुलाया, राइट? तो दैट्स द ब्यूटी अबाउट ब्रेकिंग द बॉर्डर्स, ठीक है? तो हमने टेक्नोलॉजिकल तो बॉर्डर ब्रेक कर दिया, थैंक्स टू पर्सन लाइक रिहान अल्लाह वाला, बहुत सारे ऐसे ऊपर वाले ने बनाए हैं जो अपना काम कर रहे हैं, ऊपर वाले ने जो भेजा है उस काम के लिए, ठीक है? तो ये बात है। तो आप भी अपना जर्नी, आपने भी जो जैसे जितनी भी बात हुई मेरी आपसे मैसेंजर पे, उस आज ही हुई है हालांकि, मगर आप भी यू आर द स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग द सेलिब्रिटी एक्सपीरियंसेस। सबके लिए मैं वही कहता हूँ कि आप स्पिरिचुअल बंदे बंदी हो, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, या सेलिब्रिटी में कहता हूँ। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू केम एजुकेशन वाली इन द वोन uterus of your own mom, there were 700 million sperm were ready to fertilize the egg ovum of your own mom. Out of 700 millions, education वाली you, और जो भी हमें सुन रहा है, you came as the celebrity. Yes, you are the celebrity. Life is the celebration. मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, बहुत अच्छे गुजरात के, इंडिया के वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारी बुकें भी लिखे हैं, एंड मेरे बहुत अजीज हैं, बहुत सारे घूमते फिरते भी रहते हैं, मुझे भी घूमने फिरने का, दुनिया कॉन्कर करने का शौक है। तो उनको वो अमेरिका में आए थे, 10,000 ऐसा क्राउड था, मेनली वो इंडियन वाला क्राउड था। उसमें से एक गोरी मैम ने सवाल पूछा एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन की जो स्पीच थी उनके बाद, कि कृष्णा को एक वर्ड में आप डिफाइन कीजिए, लॉर्ड कृष्णा को एक वर्ड में आप डिफाइन कीजिए।
तो वो तो बोले कि यार, अपने आप को बोला कि यार ऐसा सवाल तो पहली दफा पूछा है मैंने। वो कृष्ण के बारे में बुकें लिखी है, मैंने बुके बुके ग्रंथें पढ़ी है। द होली गीता इज द हिंदुइज्म की वो रिलीजियस बुक है। वो भी वो बैटल ग्राउंड में लॉर्ड कृष्णा ने वो अपना हथियार छोड़ा हुआ अपना दोस्त है अर्जुन, उसको सिखाया कि यार क्यों मना अपना हथियार फेंक दे रहा है, क्यों तू फाइट नहीं कर रहा है, क्यों अपने वो गांडीव को, जो उसका वो बोझ एंड एरोस था, जो ये बोझ का नाम था गांडीव धनुष्य, तो अपना गांडीव तेरे हाथ से क्यों सरकता जा रहा है। और उसने पूछा, इसलिए लॉर्ड कृष्णा ने बताया। तो जो बताया वो कॉन्वर्सेशन है, ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन है वो। दुनिया के किसी भी आदमी को वो इंस्पायर कर सकता है। इवन मरने वाले आदमी को भी, जो सांस है लास्ट सांस में भी उसके एक वर्ड भी ले ले, तो माना उसकी वो जिंदगी सवर जाए। एंड वो भी सेम बात वो सभी रिलीजन की सभी बुकों में है, माना मगर आई बीइंग बोर्न इन हिंदू फैमिली और मोर एक्सपोज टू हिंदुइज्म, जो मैं वो हिंदुइज्म के सिद्धांत से वो ज्यादा एक्सपोज हुआ हूँ, ठीक है ना। एंड थैंक्स टू रेहान अल्लाहवाला और बहुत सारे हमारे पाकिस्तान की अगेन बहनें हैं, बुआएं हैं, अम्मियां है, आंटीज है, बच्चे है, बच्चियां है, उसने भी मेरे को बहुत कुछ सिखाया इस्लाम के बारे में। अभी भी सीख रहा हूँ, अभी भी स्टूडेंट हूँ इस्लाम का और दूसरे रिलीजन का भी। तो ये बात है। ठीक है सर, बहुत अच्छा आपने मुझे जवाब दिया वाकई। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जब हम बात करते हैं ज़्यादातर, या मैं सुनती हूँ, तो हमारा जो रीजन है स्पेशली यहाँ पर जो हम बात करते हैं, हम ज़्यादातर पीस थोड़े दिनों के लिए होता है, फिर उसके बाद जो ज़्यादातर हम जो है ना इंटेंशनली जो कर रहे होते हैं ना, वो पीस नहीं कर रहे होते। तो ये बड़ी तकलीफ दह बात होती है, क्योंकि एज अ मदर भी अगर मैं ये सोचूं तो भी हम मुझे खौफ रहता है, अगर कुछ ऐसा हो गया हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे घरों का क्या होगा, क्योंकि पीस बहुत कीमती चीज़ है। अभी हम देख रहे हैं दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में पीस जो है वो नहीं है, तो वहाँ क्या हालात है, बहुत टेरेबल कंडीशन है। तो मैं तो ये 5 वक्त नमाज में दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें जो है ना वो पीस रखने की हिदायत दे, ना कि जो है ना ऐसी हरकतें अहमकाना और उस पे हम फ़ख्र करें। तो मुझे तो बड़ा दुःख होता है, क्योंकि उधर भी क्या पता कितनी मेरे जैसी माएँ हों, ठीक है ना? तो मेरा सवाल आपसे ये है कि बातें हम बहुत बढ़-चढ़ के करते हैं कि भई हमने ये बना लिया, हमने वो बना लिया, हम इनको ये कर देंगे, हम उनको वो कर देंगे। बहुत बुरी बात है। पीस कैसे आएगा? आपके ख़्याल में पीस कैसे आएगा? हमें क्या करना चाहिए जो हम नहीं कर रहे, ताकि हम वो करें और हम अपने बच्चों को सिखाएँ कि बेटा बात ये नहीं करनी, बल्कि बात दूसरे वाली करनी है, जिसमें किसी का नुकसान ना हो। बहुत बढ़िया सवाल अगेन पूछा है, आई लव योर क्वेश्चंस। पीस कैसे आए। किसी ने अच्छा कहा है कि हम मना पक्षी की तरह उड़ना सीख गए, हम मना फिश की तरह मना तैरना सीख गए, ठीक है, मगर हम एज अ ह्यूमन बीइंग ह्यूमन की तरह जीना कब सीखेंगे। ठीक है, तो ये बात तो है एंड दैट्स अ बेसिक ट्रूथ। और वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो 1971 का वॉर है कि जिसमें पाकिस्तान सेपरेट हुआ। और भी माना वो इंडिया पाकिस्तान के छोटे मोटे कारगिल का वॉर है, अभी भी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ठीक है ना। तो उसके कई के आप और हम माना इसी लाइफ में हमने जिया है, कई हमने वो सुना है हिस्ट्री के थ्रू, और हमारे परदादा दादा और मन हमारे टीचर्स और दोस्तों और जैसे भी थ्रू, ठीक है ना। तो ये बात है, मगर कभी भी कहीं भी कोई भी मसले का हल वॉर का सॉल्यूशन वॉर कभी भी नहीं है। इसीलिए तो आपने इस्लाम में सुना होगा, इस मसले की स्टोरी सुनी होगी कि हजरत मोहम्मद पैगंबर पीस बी अपॉन हिम द लास्ट मैसेंजर ऑफ इस्लाम, उन पर एक बुढ़िया मनाई कूड़ा फेंकती थी, तो वो स्टोरी आपको मालूम थी, राइट। तो उन्होंने ऐसे बड़ी बड़ी बातें नहीं की, उन्होंने वो बताया कि भाई कैसे माना पीस ला सकती है इंडिविजुअली, वन वन ऑन वन और वन ऑन मैनी। तो ये बात है, ठीक है। तो आपको स्टोरी मालूम है तो इसलिए मैं डिटेल में जानता नहीं हूँ, जिसको भी जानना है वो आपसे और हमसे और माना जो भी इस्लाम के स्कॉलर्स है उनसे कनेक्ट करे तो उनको स्टोरी मिल जाएगी। मगर बेसिक यही है कि गांधी जी ने भी कहा, यू बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, यू आर द चेंज, वो मेरा कोटेशन है। जो चेंज आप दुनिया में वर्ल्ड में कायनात में लाना चाहते हो, आप पहले बन जाओ, ठीक है ना।
गांधी जी नेवर लुक्ड बैक कि भाई कितने लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं। जब उन्होंने डिसाइड किया कि यार इंग्लिश पीपल ने वो टैक्स रखा है वो भी नमक पे, वो सही नहीं है। अब आज के जमाने में किसी को बोले कि भाई यार महात्मा गांधी जैसे मना वन ऑफ द लेजेंड, और आइंस्टाइन से बोला कि 100 साल के बाद दुनिया के लोग मानेंगे नहीं भाई ऐसा भी आदमी हार्ड मास वाला इस दुनिया में आके जी के यू नो इतना सारा कुछ कर गया। वो आइंस्टाइन के कोटेशन समथिंग लाइक दैट है, ठीक है। तो ये बात है, तो वही है। और जब भी माना यू नो पॉलिटिशियंस है उनका धर्म है कि लड़ाओ, वो कुत्ते और बिल्ली वाला स्टोरी आपने भी वो भी सुना होगा कि एक क्या होता है, कुत्ता होता है, दो बिल्ली होता है कि समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ है, और दोनों को झगड़ाता रहता है। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है कि उनका इंटरेस्ट इसमें है कि इंडिया पाकिस्तान को लड़वाते रहो, तो माना वो अपने वो इंटरनल प्रॉब्लम से ही माना वही कॉन्फ्लिक्ट से ऊपर ना आए तो माना दुनिया का सामना क्या करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें ये भी आता है, मगर तो पॉलिटिशियन का उनका इंटरेस्ट है वोट बैंक और जो भी माना है, ठीक है ना, पेट्रियोटिज्म जगा देंगे माना, ठीक है, तो ये बात है। और टेररिस्ट लोग माना उसको चांस भी देते हैं, राइट, कि भाई रिसेंटली माना फरवरी में जो हुआ इंडिया में ये भाई जात पूछ कर ऊपर पहुंचा दिया मोर देन 25 लोगों को। तो माना बीजेपी की सरकार है वो हिंदू प्रो मेनली सरकार कही जाती है। हालांकि मोदी जी को जितना मैं जानता हूँ, एक दफा मिल भी चुका हूँ, उन्होंने कभी भी ऐसी भी योजना कभी भी नहीं बनाई है कि भाई ये योजना है ओनली हिंदुओं के लिए है, मुस्लिमों के लिए नहीं है, कि क्रिश्चियनों के लिए नहीं है, कि माना नॉन हिंदू के लिए नहीं है। मगर उनकी छवि है और मीडिया का काम है वो छवि बनाना, ब्रांड बनाना। तो उनकी ये ब्रांड है, आइदर यू लव हिम और हेट हिम बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम, ठीक है ना। तो ये बात है, पॉलिटिशियनों को अपने काम करने दे, ठीक है। वो लड़ाने वाले हैं, टेररिस्ट है, उनको अपना काम करने दे। मैं क्या कर सकता हूँ, आप क्या कर सकती है, और हमारे सुनने वाले अपनी ओर से क्या कर सकते हैं, वो हम अपना काम फाइंड आउट करें। अपना कॉलिंग क्या है इस दुनिया में वो फाइंड आउट करें। आपका कॉलिंग पीस है तो उसके पीछे लगे रहें। ऑफकोर्स फैमिली को भी संभालना है, बच्ची और बेटा जो भी है उनको भी मना, शुक्रिया, उनको भी मना बड़ा करना है। बिकॉज बीइंग द मदर, मैं मदर नहीं हूँ सो आई कैन नॉट रिलेट, मगर मैंने सुना है कि बीइंग द मदर इज द वर्ल्ड नंबर 1 जॉब इन द वर्ल्ड। मगर स्पेशली मर्दे ही माना मदर को माना वही लेते हैं कि भैया तो होम मेकर है। होम मेकर भी रिसेंटली वो नया नया अवार्ड आया है, मैं भी एक आध दो डेकेड के पहले, वरना तो यार काम वाम नहीं, घर पे मना रहती है वो, क्या बोलते हैं यार, सो समझ गया मेरी बच्चे। मैंने भी मेरी मदर को बस वही देखा है कि इतना खास पढ़ी नहीं थी मेरी मदर, तो मैंने पूरी जिंदगी माना वो भी 50 साल ही जी, 51 साल, तो घर काम करते करते ही माना ऊपर पहुंच गई। मगर मैंने मेरी मदर को देखा पूरी लाइफ, तो मैंने डिसाइड किया कि जब भी मैं शादी करूंगा बड़ा होके, तो मैं मेरी बीबी को ऐसे मना ओनली किचन में ही नहीं रखूंगा, ठीक है ना। एंड आई रिस्पेक्ट वॉट एवर माई मॉम डिड फॉर मी, फॉर अवर फैमिली। जो मदर ने किया तो मना वो तो मेरे फादर को वो नहीं संभालना पड़ा ना, इसलिए हम में और दुनिया के लोगों में, स्पेशली वो हमारे इलाके के लोगों में, वो एजुकेशन वो बढ़ सके, स्पीचेस दे सके, बिना वो रात दिन खाना, कहाँ खाना है, कब खाना है, घर भी पहुंचना है नहीं पहुंचना है, वो सब बिना देखे। क्यों? बिकॉज वो होम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज टेकन केयर ऑफ, कि भाई बच्चों की जवाबदारी ये सब वो सब खाना पीना ऐसा वो सब मैं कर दूंगी। सो आप मना जिसको भी फतेह करना है, दुनिया फतेह कर, कम्युनिटी फतेह करो, तो ये बात है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल मेरे को आता है और रियल स्टोरी है। जब लॉर्ड रामा की पत्नी गॉडेस सीता को रावण श्रीलंका, इस वक्त गोल्डन श्रीलंका कहा जाती है, सुनहरी लंका कहा जाती थी, तो उनको उठा ले गया, ठीक है। तो उठा तो ले गया, तो उसमें फाइनली वो डिसाइड किया कि वो श्रीलंका से वो सामने पार है, बीच में समंदर है। तो पहले तो समंदर को हमारे लॉर्ड रामा ने विनती की कि यार जगह दे दे यार, कोई दिनों के लिए जरूरत है तो जगह दे दो। तो ठीक है यार। तो ऐसे 3 दिन माना लॉर्ड रामा जो स्वयं भगवान है, उन्होंने माना 3 दिन जो समंदर को प्रेयर किया बिना खाए पिए, जितने भी अवर्ष एंड अवर्ष। मगर समंदर तो समंदर है, सबका अपना नेचर होता है। लाइक क्या बोलते हैं, वो भी स्टोरी एक है कि भाई एक नदी थी, एक साधु थे, अच्छे साधु थे। तो माना बार बार वो एक क्या बोलते हैं यार, वो डंक मारने वाला नीची बिच्छू, अब बिच्छू उन्होंने देखा वो तैरता हुआ, वो बोला कि मर जाएगा साला है तो यार कुछ करे यार।
तो उनको अपने हाथ में पानी में हाथ में लेके उनको लेके वो जा रहे थे वो उसके नदी के तट पर, तो उसको मना सैंड पे वो रखने के लिए। मगर एक आध दो पैर लगाए पानी माना निकल जाता था, उसको जीना था तो वो माना डंक मार लेता था। because उसको तो जीना है, उसका मेन वो इंटेंस यही है, और उसका नेचर काटना है तो वो काट रहा था। मगर वो उसका नेचर वो निभा रहा था, वो गुरु अपना नेचर निभा रहे थे, भलाई करने का, इस वो सब जिंदगी किसी की जा रही है तो बचाने का वो सब। तो किसी ने उसको देखा दो तीन दफा यार, उससे रहने गया कि ये क्या कर रहे हैं यार, वो आपको काट रहा है, आपके हाथों में से लहू बह रहा है, वो पानी भी अब लाल होने लगा है, फिर भी आप क्या ऐसा कर रहे हो, आपको यू नो तो बस उन्होंने भी मैसेज वही था कि वो अपना धर्म निभा रहा है, अपना रिलीजन निभा रहा है, मैं अपना रिलीजन निभा रहा हूँ। मैं कोई बड़ा तीसमार का नहीं हूँ, जो मैंने सीखा है, मैंने जो पाया है मेरे जीवन से और लोगों के एक्सपीरियंस से, वो मैं कर रहा हूँ, वो अपना जीवन निभा रहा है, तो वो भी रॉन्ग नहीं है। और मैं आई डोंट नो ऊपर वाला देखेगा मैं रॉन्ग भी या राइट हूँ, तो ये बात है। दूसरी ये तो हाँ, तो जब ब्रिज बना रहे थे, जब रास्ता नहीं दिया, तो इसके बाद यार राम भगवान गुस्से हुए और देख ले जो भी वो मैसेंजर और प्रॉफिट और जो भी आते हैं वो भी माना हमारे ह्यूमन बीइंग की तरह माना एंग्री होना रोना ये सब करते रहते हैं। क्यों? बिकॉज हम में और उनमें इतना डिस्टेंस लगे कि यार नहीं यार वो तो यार वही कर सकते हम नहीं कर सकते, माना वो रोए तो हमें भी लगता है कि हाँ यार हम भी रोते हैं, हमारे लाइफ में ना दुख आए ये आए वो आए, हम भी हमारे बच्चों को रोते हुए देखते हैं, सहन नहीं कर सकते एज लाइक मदर और फादर। ठीक है, तो ये बात है। तो इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब ये मेरा तीर और ये मेरा धनुष है, तूने तीन तीन दिन तक मैंने वो प्यार से वो समझा रहा था, नहीं समझा, अब मेरे को तेरे को तीर मारूंगा और तेरे को मैं जला दूंगा ये सब वो सब, और मानना तू क्या पूरा रास्ता हो जाएगा, मैं तो छोटा सा रास्ता ही मांग रहा था, तेरे को पूरे को सुखा दूंगा। हाँ, इसके बाद एनीवेज वो ब्रिज बांधने का वो आइडिया दिया कि भाई ना ब्रिज बांधे, तो लोग वो राम का नाम डाल के वो ब्रिज बांध रहे थे, वो बंदरों की सेना थी मेनली, तो वो जंगलों में रहने वाले बंदर अनपढ़ और हाँ वो लोग। तो उसमें एक गिलहरी थी, गिलहरी वो खिसकोली हम कहते गुजराती में, वो ना स्कैरो आई नो समथिंग लाइक, हाँ तो गिलहरी थी। तो गिलहरी भी कुछ कर रही थी, वो जा रही थी समंदर में, आ रही थी वो समंदर के रिवर बैंक सो सी बैंक के पास, और वो रेती में वो लटपट ऐसे ऐसे गुलाटी मारती थी, वापस जाती थी वापस आती थी। ठीक है, तो वो बड़े बड़े वो बंदर थे, वो तो हंसने लगे कि यार तू क्या कर रही है यार, मैं समझ में नहीं आ रहा है, तू इतनी छोटी सी है और ये मना क्या कर रही है। तो बोला कि जो अभी वो चल रहा है, बड़ा मिशन चल रहा है, तो उसमें जो मेरे से जो हो रहा है मैं अपना वो योगदान दे रही हूँ। और ये लॉर्ड रामा ने कॉन्वर्सेशन सुना, तो लॉर्ड रामा वो बहुत खुश हो गए कि यार इट्स नॉट अबाउट द साइज ऑफ योर बॉडी, इट्स नॉट अबाउट आप मैं छोटी हूँ वो बड़ा है, इट्स नॉट अबाउट लाइक मैं पाकिस्तानी हूँ ये तो मना कनाडा में रहते हैं, इट्स नॉट अबाउट लाइक मैं तो मेरी उम्र कितनी है और वो तो मना पूरी जिंदगी माना और पूरी दुनिया घूम के बैठे, ऐसा नहीं है। सबके अंदर ऊपर वाला ही रहता है, ऊपर वाले ने आपको बनाया मेरे को बनाया है, सो देन वाई हम अपने आप से ही माना एक तय करे और अपने आप से ही माना कांपने लगे कि यार वो मेरे को काट लेगा खा लेगा ये सब वो सब। मगर वो होता है नेचुरल मैकेनिज्म होती है, वो सब कुछ लोग उसको बटरफ्लाई कहते हैं, राइट। तो आज की बात करके भैया, आज मैंने कपल ऑफ डेज जो जाजमीन का कोशिश था कि कासिम अली शाह से मैं कनेक्ट करूँ फेसबुक पे, फिर फ्रेंड बने, तो वो अपने वो इज द अल्टीमेट कनेक्टिंग कनेक्शन वाली ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया को सिखा रही हाउ टू कनेक्ट कोलोबरेट एंड कनेक्ट कम्युनिकेट एंड कोलोबरेट, 3 C सिखा रही है। और मैं उसके एग्जाम्पल, मैंने वो पहली शादी के बाद मैं 8 साल कमा रहा था, मैंने डिसाइड नहीं किए, मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अभी फिर से कभी भी शादी नहीं करूंगा। मगर लास्ट 3 years जाजमीन एंड आई आर मैरिड, सो वही बात है कि आप कुछ भी कर सकते हैं एज लॉन्ग एज यू नो दिस इज द राइट थिंग टू डू, एज लॉन्ग एज the way Gandhi knew, like this dandi kuch are going against like the taxation of the salt, that's the right thing to do, and he did whatever Muhammad Ali Jinnah decided, like this is the right thing to do to help like different on Pakistan, and he got it right. So this is what it is. या हालांकि गांधी जी ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी नहीं सोचा होगा कि जिस दिन हम फ्रीडम हो गए इंडिया पाकिस्तान बनेगा, उसी रात को माना 10 लाख 1 लाख और जितने भी माना वो कट गए हैं,
वो कट जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा होगा, ठीक है ना। तो मगर होता है, बड़े बड़े देशों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें भी होती है, ऐसे नहीं कि छोटी छोटी बातें ही होती है, तो होता है। हिस्ट्री ऐसे तो बनती है, ऐसे तो हम सीखते हैं हिस्ट्री से कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पुरखों ने ये किया तो इसका रिजल्ट ये आया, तो हम क्या करें। यू नो उनके नक्शे कदम पर चलेंगे तो कहाँ तक पहुंचेंगे, यू नो और क्या और बेटर कर सकते। बिकॉज आज के जमाने में आपके पास, मेरे पास, जो हमारे सुनने वाले, उनके पास ये एडवांटेज है कि वी आर एट द हाई टेक एंड हाई टच सोसाइटी। हाई टच इज यू एंड आई, वी हैव हाई टच ऑफ एआई, चैट जीपीटी, इतना सारा एक्सपीरियंस है जो मदर होने का, पाकिस्तान में पैदा होने का, ये अपनी वो जैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इस्लाम का, तो बहुत सारा वो हाई टच, दैट्स हाई टच। एंड हाई टेक तो आप जानते हो, लाइक एआई, चैट जीपीटी, ये सब वो सब है। एंड वही है। सो आज के ज़माने में जो रेवोल्यूशन लाना है, इट्स मोर ईज़ियर रादर देन माना 1947 में, और जितने भी मैंने क्रांतियाँ उसके पहले हुए, मार्क्स के टाइम पे कि ये टाइम के वो टाइम पे, उससे बहुत ज़्यादा ईज़ी है। मगर वी आर टेकिंग इट लाइटली, बिकॉज़ जो चैट जीपीटी हमें इतना चार्ज नहीं करता है अभी, फेसबुक फ्री है अभी। तो जब वो इट्स फ्री होता है तो इस टेंडेंसी होती है कि वी डोंट अप्रिशिएट मच। जब मैं इंडिया में था तब ऑफ कोर्स इंडिया को लव करता था, मगर आई स्टार्टेड लविंग इंडिया मोर आफ्टर लिविंग इंडिया। आई स्टार्टेड लविंग माय मदर मोर आफ्टर माय मदर लेफ्ट दिस वर्ल्ड। तो ये बात है। ठीक है सर, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। और मैं भी ये कहूँगी कि मैंने भी बहुत सारी मदर्स को उधर भी देखा है, इंडिया में भी, और मैं खुद भी एक्सपीरियंस यहाँ पाकिस्तान में भी करती हूँ। जब हम मिलते हैं एक दूसरे से बहुत प्यार मोहब्बत होता है। और अगर हम पीपल की बात करें, जो कॉमन पीपल हैं यहाँ पर, तो उनके दिल में जो है वो मोहब्बत है, और कुछ नहीं है। तो वाक़यात होते हैं, हम भी रंजीदा होते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले इंडिया में एक वाक़या हुआ था, जहाज़ गिर गया था, उसमें काफ़ी लोग जो हैं वो वफ़ात पा गए, तो उसमें हमें बहुत दुःख हुआ, और हम उसका तज़किरा भी करते हैं। तो ये तो है ह्यूमन फैक्टर। तो अब ज़रा हम इस कन्वर्सेशन के मोड पे चेंज करते हैं। तो आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आप जो हैं बॉलीवुड से भी काफ़ी इंस्पायर हैं। तो बॉलीवुड की मूवीज़ और म्यूज़िक तो हमारा कॉमन ही है, नो डाउट, हमें इसको एडमिट करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे सितारे हैं जो कि पाकिस्तान से हैं, और इंडिया में उनसे बहुत मोहब्बत की जाती है। और बहुत सारे इंडिया के जो सितारे हैं यहाँ पाकिस्तान में लोगों के दिलों की धड़कन है। तो जैसे कि शाहरुख खान हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, आमिर खान हो गए, सलमान खान हो गए, तो ये हमें बहुत पसंद है, इन्होंने बहुत काम किया। तो सर आपसे मैं पूछूंगी कि आपके फेवरेट हीरो जो हैं वो कौन है? मुझे लगता है कि वो सर अमिताभ होंगे। तो वो क्यों है? अगर सर अमिताभ हैं तो वो क्यों है, आप मुझे बताएं। सही बात है, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान वो मेरे सबसे फेवरेट है। हालांकि बहुत सारे लोगों से मैं मिल चुका हूँ, हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हो, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हो, क्रिकेटर्स हो, टेनिस प्लेयर्स हो, अदर स्पोर्ट्स पर्सन हो, स्पिरिचुअल लीडर्स हो, अवार्ड विनिंग ऑथर्स हो, एम्पावर्ड एंटरप्रेन्योर्स हो, स्पिरिचुअल गुरुज हो। तो पूरी लाइफ में बहुत सारे से मिल चुका हूँ। एंड तो मैंने एक पहली बुक भी लिखी है, हालांकि यू आर द सेलिब्रिटी। तो उसमें मेरे एक्सपीरियंसेस मैंने लिखे हैं, 10 उसमें से चूज़ किए। तो ऑफ कोर्स अमिताभ के बारे में एक चैप्टर लिखा है, हाउ शाहरुख खान से मिलने का कैसे हुआ, उसके बारे में एक चैप्टर लिखा है। और बॉटम लाइन यही है कि ये मैं मिल सकता हूँ, मैं भी गाँव का गँवार ही हूँ, और गाँव का गँवार मिल सकता है इतने सारे सेलिब्रिटी से, तो आप भी मिल सकते हो। कोई मैंने वो तोप नहीं मार दी है, और मैं 30 मार खा नहीं हूँ, ठीक है ना? बिकॉज़ मेरे को, आपको और सबको बुला बनाने वाला एक ही है, ठीक है? तो ये बात है। तो हाँ जी, तो बॉलीवुड का और मेरा सफ़र ऐसे शुरू हुआ, बचपन से मेरे अंकल को एक मूवी थिएटर के वो मैनेजर थे। अंकल मैनेजर तो माना मेरा थिएटर हो गया। तो मैंने बहुत सारी मूवीज़ माना राइट बाय द स्क्रीन। कभी-कभी वो मूवीज़ वो सिंगल स्क्रीन वो उस ज़माने में बहुत होते थे, वो मल्टीपल का ज़माना नहीं आया था कि 10-10 स्क्रीन सेम वेन्यू पे। तो माना अच्छी-अच्छी मूवी आती तो हाउसफुल हो जाता था। तो कभी-कभी माना राइट बाय द स्क्रीन खड़े-खड़े और पहली लाइन पे भी दिखना होता था, तो मैंने ऐसे करके मैंने पूरे 3 घंटे निकाल देते। कभी-कभी बालकनी आई लो, बालकनी में लास्ट सीट में भी बैठ के भी देखे हैं मैंने मूवीज़ बहुत सारे।
और मैंने इवन प्रोजेक्ट रूम से भी देखे हैं, बिकॉज कुतूहल होता है ना बच्चे को, राइट, तो वो स्क्रीन से मैंने कैसे मैंने वो ट्र करके वो घुर निकलता है, और कैसे मैंने वो लाइट पड़ती है, और कैसे मैंने वहां पे लोग एंजॉय करते हैं पिक्चर, ठीक है। तो ये सब भी देखा है। और बहुत सारे लोगों ने, मेरे फादर मेरे पहले गुरु है, उन्होंने मेरे को वाइल्ड स्ट्रीमर बनाया, बॉलीवुड ने मेरे को वाइल्ड स्ट्रीमर बनाया। जब मैं बॉलीवुड मूवीज देखता हूँ और वो बॉलीवुड के सितारे से मिलता हूँ स्पेशली, तो मैं किसी और दुनिया में चला जाता हूँ। और घर से भी निकलता हूँ जब मिलने के लिए किसी कॉन्सर्ट में, और मालूम पड़ता है कि ये बॉलीवुड सितारा यहाँ पे आया है, कि ये सेलिब्रिटी यहाँ पे आया है। सो घर से मैं वो यही एक्सपेक्टेड के साथ जाता हूँ कि उनका ऑटोग्राफ मेरे को मिल गया, ऑटोग्राफ बुक भी साथ में लेके जाता हूँ, ठीक है। इज लाइक, ओ माय गॉड, वो तो इतना बड़ा है, वो दुनिया पे राज कर रहा है, कि इंडिया पे राज कर रहा है, कि पाकिस्तान पे राज कर रहा है, कि एक्सवाइजेड कंट्री पे राज कर रहा है। वो मेरे जैसे मामूली आदमी को कैसे, नहीं 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 नहीं, क्यों अपने आप को मामूली समझना, ठीक है। तो मेरी मेंटालिटी यही रहते है। कई लोग ने ऑटोग्राफ दिए हैं, कई लोगों ने फोटोग्राफ भी अपना वो सेल्फी दिया है। उस वक्त हालांकि सेल्फी वर्ड प्रचलित नहीं था, और उस वक्त सेलफोन बेलफोन भी नहीं थे, तो कैमरा वैमरा मेरा पर्सनल भी नहीं था। तो मैं मेडिकल कॉलेज में था, ये वाक्य सुनाने जैसा है। मैं मेडिकल कॉलेज में था, और मेरे फादर का सपना जी रहा था मेडिकल कॉलेज में, कि भाई मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। मेरे और सपने थे, उसकी भी मैं बात करूंगा, पर इसके पहले ये इंसिडेंस बना था। तो सूरत जहाँ पे बहुत बड़ा सिटी है, वो डायमंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, तो वहाँ पे क्रिकेटर्स, उस जमाने के क्रिकेटर्स जो इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करते थे, वो क्रिकेटर्स वहाँ पे क्रिकेट खेलने आए थे, ठीक है। तो मेरा शौक था बहुत सालों से। अभी तो मैंने लेट्स से 1990, सो अबाउट 45 इयर्स हो गए, कि सेलिब्रिटी के इनर सर्कल में कैसे जाना है, कैसे माना, डजेंट मैटर, मिदनी हो, 1000 की हो, 10 की हो, लाखों की हो, कि करोड़ की हो, कैसे माना वो जो सेलिब्रिटी है वो जान जाए कि मैं उस क्राउड में खड़ा हूँ। आई डोंट नो, ऊपर वाले ने भी इतने सारे सेलिब्रिटी से मिलने से वो मैंने टेक्निक को बता दी है। तो मैं तो वो हो जाता है मेनली, ठीक है। कई लोग ऑटोग्राफ देते हैं, कई लोग नहीं देते, कई लोग देते, लेट्स से ड्रामा देखने गए किसी एक्ट्रेस का, तो बोलते हैं कि मेरा ड्रामा देख, टिकट लेके, वरना इसके बाद में ऑटोग्राफ दोगी। अब उस जमाने में हम स्टूडेंट यार, मेरे फादर 3-3 बेटे को मैंने हॉस्टल में रख के पढ़ाते थे। वो यार हाई स्कूल में क्लर्क और इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव, और तीनों को मैंने इतना दो, कितना दे सके कि भाई जाओ बेटा जलसा भी करो, इसके लिए भी पैसे दो। मैंने वो फ्री में कैसे माना मूवीज देखी जाती है, कैसे माना वो सेलिब्रिटी के शो में और ड्रामा देखे जाते हैं, वो मैंने आर्ट पैदा कर दी थी। तो ऐसे चला जाता था। वो मेरे वो मेडिकल के दोस्त भी माना वो हैरान हो जाते थे कि ये कैसे ये सब कर लेता है। मैंने बोला कि आप माना पढ़ने में हो मेडिकल के, तो आप मेडिकल के बड़े बड़े थोते किताबें पढ़ रहे, मैं माना इसमें वो मशगूल रहता हूँ। और वो मेरे को माना मेडिकल कॉलेज में सर्वाइव रहने का वो क्या बोलते हैं तरीका देता है, तो मैं सर्वाइव हूँ इसकी इस सारी वजह से, ये सारे नखरों की वजह से। तो ये बात है। तो बेसिकली यही है कि बस और हाँ, क्या बनने का सपना था, तो जब मैं वो ग्रेड 2-3 में था, तो मेरे फादर ने वो कंटेनर दिया था, वो पेंसिल रखने के लिए। तो उसमें ब्यूटीफुल पिक्चर था एक एयरप्लेन का, ब्लू कलर और व्हाइट कलर का एयरप्लेन का, और ब्लू कलर और व्हाइट कलर में वो एक ड्रेस वाली लेडी थी, तो शायद वो एयर होस्टेस और पायलट होगी। तो मैंने पहला सपना देखा वो कंटेनर से, कि भाई ना बड़े होके लोगों को दुनिया घुमाएंगे, हम भी दुनिया घूमेंगे, प्लेन चलाएंगे, ठीक है। जब मैं मेरी लाइफ में आया अराउंड अर्ली टीनेजर्स, अबाउट 13-14 का हुआ होगा, तो बचपन से ही वो स्पिरिचुअलिटी सिखाई गई थी। जो स्टेट में पैदा हुआ उसका नाम भी टेम्पल स्टेट महादेववास है। मेरे स्टेट में 2 टेम्पल है, मेरे गांव में 100 से भी ज्यादा टेम्पल है। हालांकि गांव का सबसे बड़ा जो टेम्पल है वो मुस्लिम देवी का टेम्पल है, जो गांव वालों ने बनाया है। हालांकि 1000+ ईयर की हिस्ट्री में ओनली हिंदू लोग ही वो गांव में रहे हैं, ठीक है। मगर वो गांव के लोगों ने एज वेल एज जो नॉन रेसिडेंट इंडियन जैसे मेरे जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और बहुत सारे कंट्रीज में उन्होंने वो टेम्पल बनाया है। तो स्पिरिचुअलिटी का बचपन से ही वो खोज रही है, और ऊपर वाले ने वही जगह पे पैदा किया है। और इंडिया भी वो कहा जाता है कि सीकरों का देश है, वो स्पिरिचुअलिटी का देश है। आपको ढूंढना है कुछ बियॉन्ड मटेरियल, देन यू मस्ट विजिट इंडिया फॉर श्योर, एटलीस्ट वंस,
ठीक है। हिमालय में ऐसे कहा जाता है कि बहुत सारे माना ऐसे गुरु जी, ऐसे स्वामी जी, ऐसे पीर जी माना जो हजारों सालों से जी रहे हैं। हाँ। तो ये बात है। तो बस वही है। तो इसके बाद मेरे फादर ने बोला, मैंने फादर से कहा कि पापा पापा मैं ऐसा हिंदू स्वामी बनना चाहता हूँ, बिकॉज़ एट दोज़ डेज़ आई वाज़ एक्सपोज़्ड टू हिंदुइज़्म, सो वही मैं जानता था कि भाई हिंदुइज़्म ही धर्म है। तो मेरे पापा ने बोला कि यू आर द लाइट हाउस ऑफ आवर फैमिली, वो गुजराती में मेरे को उसको ट्रांसलेट करके बोला। तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग तो कभी-कभी हमारे अपने ही वो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। दैट्स ओके, बिकॉज़ वो उस वक़्त वो मेरा पाथ नहीं होगा शायद। मगर वो अंदर तो रहा ही था वो सपना, तो मैंने अभी वो स्वामी विश्वागुरु के नाम से वो जी रहा हूँ, ठीक है? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपके बॉलीवुड के फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है, हीरो कौन है, और अगर वो अमिताभ बच्चन है तो उसकी वजह क्या है? अमिताभ बच्चन क्यों है? इसके उसके बारे में होल बुक लिख सकता हूँ हालाँकि, मगर टॉप में कहता हूँ तो लाइक वो ग्राउंडेड है यार। इतना सारा उन्होंने अचीव किया है। मगर कभी भी आप उनसे इन पर्सन मिलें, और बहुत सारे एक्टरों ने भी ये महसूस किया है कि वो भी मना वो उनको भी बटरफ्लाई होते हैं जब पहली दफ़ा उनके साथ शॉट देखने जाते हैं कि मिलने जाते हैं कि मिलने का होता है। तो मगर वो सबका एक्सपीरियंस यही है कि वो हमें माना एट ईज़ वो बना देते हैं। वो ऐसा कभी भी वो हमें पैदा नहीं करवाते हैं कि वो बहुत बड़े हैं समवेयर ओवर देयर, और ही इज़ द गॉड ऑफ बॉलीवुड, और एक्स वाई जेड ऑफ बॉलीवुड, और क्या बोलते हैं वो डेट मिलेनियम स्टार ऑफ द मिलेनियम, ये सब नहीं। वो उनको हमें लाइक उनके जैसे ही हो, माना हमें वो लगता ही नहीं है कि वो माने इतने बड़े हैं। हम मान अंदर का वो कहता है कि यार वो कितने बड़े, ये सब वो सब यार यार, मगर वो फील करवाते नहीं है। तो because people don't care how much people don't care how many books you have written, people don't care how many awards you have got, people don't care how many millions billions you have, but people do care how you make them feel। और वो अमिताभ जी में है। और इसके बाद तो वो जो भी रोल करते हैं माना यू इमिटेट हिम लाइक, या जो जमाना था जब वो लेट्स 70s 80s का, जो वो एंग्री यंग मैन थे, और अगेन वो उस जमाने में वो लिखने वाले भी ऐसे थे, सलीम जावेद साहब थे माना, ठीक है ना। उस जमाने में वो डायरेक्टर भी ऐसे थे जैसे मनमोहन देसाई थे, प्रकाश जाज थे, चिटरजी बासु, और बहुत सारे लोग थे माना। उस जमाने में वो माना म्यूजिशियन भी ऐसे थे वो सब, कि उनका वो मनी बनाने का वो मेन टारगेट नहीं था। उनका वो टारगेट था कि यार बस ऐसी मोमेंट दुनिया वालों को दे कि वो एटलीस्ट 2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए कि अपने वो मसलों को भूल जाए यार। तो बस वही होता था। और मना मुकेश को देखो, रफ़ी को देखो, लता को देखो, नूरजहाँ जी को देखो, और इतने बहुत सारे हैं मना नाम लेते जाओ। तो वही है। एंड अगेन लाइक अमिताभ जी ऐसे है कि उनके बारे में माना जितना कहा जाए वो कम ही है। और मैंने बहुत सारी उनकी मिमिक्री भी करता हूँ, आप मना फरमाइश करें तो उनकी मिमिक्री भी ज़रूर आपके लिए, आपके देखने वालों के लिए मैं फरमाइश करूँगा ज़रूर। जी, ज़रूर, ज़रूर। श्योर? यस, यस। ओके। आपने दीवार मूवी का नाम तो सुना होगा। दीवार मूवी में एक स्पेसिफिक मूवी देखा है आपने? अमिताभ बच्चन की दीवार कुछ सीन देखे हैं, पूरी मूवी नहीं देखी है, मेरे पैदा होने से पहले की मूवी है वो। अच्छा, अच्छा, यूट्यूब पे पड़ी होगी, आप फ्री में देख सकते हो, ठीक है ना? एंड टाइम हो ओके। और आपके पास 2.5 घंटे हो तो माना डेफ़िनेटली निकाल के बिना डिस्ट्रैक्शन के देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा फॉर श्योर। उनका ही डायलॉग मैंने वो सुना है जब अमिताभ बच्चन जी मेरे सिटी टोरंटो, मेरे कंट्री कनाडा में आए थे। तब मैंने ये डायलॉग भी उनके मुँह से सुना था, बिकॉज़ वो पब्लिक की डिमांड थी। उसके डायलॉग के बिना तो उनकी कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होती है। तो ये डायलॉग है, टुवर्ड्स द मूवी के एंड में आता है। तो स्टोरी ये समथिंग लाइक दैट होती है, पूरी स्टोरी नहीं बताऊँगा। एक माँ होती है, उसके 2 बेटे होते हैं। अ, और फादर भी होता है, मगर फादर लीडर जैसा होता है वो कंपनी में, कामदारों की कंपनी में वो लीडर जैसा होता है, लीडरों की, मज़दूरों की आवाज़ होती है। और स्ट्राइक होती है तो माना वो स्ट्राइक के लीडर बन जाते हैं। मगर वो जो मेन बॉस होता है कंपनी का, वो चाल रम के उनको माना वो चोर जैसा वो उनको उनका वो माना क्या बोलते हैं ब्रांड का भ्रंश कर देते हैं कि भाई ये तो चोर है, आपका लीडर बीडर नहीं है। तो उनसे सहा नहीं जाता है तो माना वो घर छोड़ के भाग जाता है फादर।
तो बचपन से ही अमिताभ को लोग चिढ़ाते थे कि भाई ये तो मना लावारिस है, लावारिस है, लावारिस है, राइट? तो उनके हाथों पे बचपन पे वो मना वो टैटू भी करवाया जाता है कि मेरा बाप चोर है, ठीक है? अब जो बच्चा बचपन में लोगों ने ये करवाया हो, तो वो बच्चे से भगवान को कैसे मानेगा, ठीक है? और उनकी और भगवान की तो माना वो 36 का आंकड़ा ही रहेगा। मगर उनकी मदर वो भगवान को मानने वाली थी, इतना भी जुल्म हुआ फिर भी वो भगवान को मान देती है। उसका हस्बैंड नहीं है उनके साथ, उसको मालूम है वो जिंदा है भी नहीं है, वो भी मालूम नहीं है। 2 बच्चों को वो पला-बड़ा कर रही है, कैसे माना वो गुज़ारा कर रही है वही जानती है। फिर भी एवरी डे वो टेम्पल में जाती थी, मगर वो उसका एक बेटा है, वो उसके साथ वो ऑल द वे टू द भगवान के टेम्पल के अंदर वो सीढ़ियाँ चढ़ के भी जाता था और जो भी प्रे करते थे उसके साथ करता था। मगर अमिताभ बच्चन माना बचपन में भी माना वो जाता था मंदिर तक, मगर सीढ़ियाँ भी वो नहीं चढ़ता था और अंदर तक भी नहीं जाता था। ज तो मतलब वो रिस्पेक्ट करती थी कि भई वो फ़ोर्स नहीं करती कि भई वो तेरा भाई आ रहा है, तू क्यों नहीं आ रहा है? वो पेरेंटिंग का लेसन उसमें भी है कि भई हमें बच्चों को फ़ोर्स नहीं करना चाहिए कि ये हमारे नेबर का बंदा ये कर रहा है, नेबर का बच्चा ये कर रहा है, वो तो 100% ला रहा है, तू क्यों 99.99 ला ला रहा है? नो यार, क्यों यार? वो कंपैरिज़न करने की थोड़ी चीज़ है यार। आप भी माने कितने लाए थे जब वो स्टूडेंट थे, आप भी अपने ज़माने में तब कितने लाए थे? अपने आप को पूछिए ना। तो क्यों अपनी एक्सपेक्टेशन जो फुलफिल नहीं है, वो अपने बच्चे पे थोप रहे हो? ठीक है? तो ऐसा है मगर अल्टीमेटली वो डॉन बन जाता है और बहुत सारा शोहरत-वोहरत ये सब आ जाता है। अमिताभ उसका दूसरा दोस्त ऋषि कपूर बनता है, वो पुलिस इंस्पेक्टर बनता है। वो माना वो अपनी वो वर्दी का वो रिस्पेक्ट करता है, वो 2 नंबर वाला काम नहीं करता, ये सब वो सब। और अल्टीमेटली इतना उसको मालूम पड़ता है अमिताभ बच्चन को और रियल स्टोरी है वन एक्चुअली बॉम्बे का एक डॉन थे, उसके लाइफ पे बनी हुई है रियल स्टोरी एक्चुअली। ऑफ कोर्स थोड़ा वो ड्रामेटाइज़ तो करना होता है पब्लिक का अटेंशन इश्यू करने के लिए। तो अल्टीमेटली अमिताभ को मालूम होता है कि उसकी माँ जीवन और मौत के बिछाने पे पड़ी है। तो तब वो वही टेम्पल पे जाता है, जिस टेम्पल में वो बचपन पे जाता था मगर कभी भी मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा है। सो सीन ये है अभी, अमिताभ बच्चन है, काले कपड़ों में है बिना जूते पहने वो मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, बढ़िया-सा म्यूज़िक आ रहा है। तो इमेजिन करिए वो सीन है लॉर्ड शंकर उनका मंदिर है। मगर उसके पहले ऐसा सीन बॉलीवुड में नहीं हुआ था, तो अमिताभ बच्चन को बोला कि ये सीन आपको करना है, उसके डायरेक्टर ने बोला, तो अमिताभ बच्चन ने बोला कि मैं इस रूम के अंदर जाता हूँ, जब तक मैं बाहर ना आऊँ, तब तक ये खोलना नहीं दरवाज़ा रूम का, डज़न्ट मैटर कितना भी टाइम लग जाए। तो कहा जाता है कि वो सुबह से घुसे थे, रात को माना ऑलमोस्ट आते हैं और इसके बाद ये सीन पिक्चराइज़ होता है और सीन अगेन ऐसा कुछ होता है। अगेन हू एम आई टू प्ले अमिताभ बच्चन? मगर डेफिनिटली उनका वो चाहने वाला हो तो ज़रूर कोशिश करूँगा बिकॉज़ कोशिश से अक्सर कामयाब होते हैं, वादे अक्सर तुम जाते हैं। सो अगेन इमेजिन द टेम्पल, इमेजिन द स्टेडियम, इमेजिन द म्यूज़िक बढ़िया सा आई थिंक आई डोंट नो प्रकाश जावल, मनमोहन देसाई हो गए मेरे ख्याल से वो डायरेक्टर। आज खुश तो बहुत हो गए। सुस्त बहुत हो गया आज के जो आदमी आज तक तुम्हारे मन की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, वो आज आपके सामने है। जो उसने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, वो हाथ आपके सामने फैलाए खड़ा है। मगर वो बुढ़िया जो दिन रात आपके मंदिर तक आती रही, जिसकी वजह से आपके मंदिर की फर्श घिस गई, वो बुढ़िया आज जिंदगी और मौत के बिछाने पे है और ये आपकी हार है। कौन सा काम किया था उसने? क्या उसका जुर्म ये था कि वो मेरी माँ है? क्या उसका जुर्म ये था कि उसने मेरे को पैदा किया है? बचपन से ही मेरी माँ अपने बाप होते हुए भी विधवा की तरह जीती रही। मैं मेरा बाप होते हुए भी लावारिस की तरह जीता रहा। कौन सा पाप किया था? मेरे गुनाहों की सजा मेरी माँ को मत दो। मेरे गुनाहों की सजा मेरे माँ को मत दो। हाँ जी। शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत इंस्पायरिंग और आपने बहुत एफर्ट लगाई, बहुत एनर्जी और ऐसे महसूस हो रहा था कि वाक़ई ही एक ट्रू फैन जो है ना वो अपने जो स्टार को जो है ना वो एप्रिशिएट कर रहा है।
बहुत अच्छा। मैंने पहली दफ़ा ऐसा देखा है, पर इससे पहले मैंने नहीं ऐसा कभी देखा। शुक्रिया, शुक्रिया। तो सलमान खान का डायलॉग है कि यार मैं दिल में आता हूँ, दिमाग में नहीं, ऐसा कुछ आता है। तो बस यही बंदा है वहाँ, नहीं ना, जितने भी नापने की कोशिश करोगे कि भाई ये बंदा तो पहन रहा है ना, कोई गुरु जैसा लगता भी नहीं है। ये वो बात कर रहा है कि यार ऑथर जैसा, मगर ऑथर जैसा सीरियस भी नहीं है। ये बंदा बात कर रहा है सेलिब्रिटी गुरु का, मगर उसका मूवी अभी तक आया नहीं है। ये बंदा है क्या? तो मैं भी वही डायलॉग मारता हूँ कि मेरे बारे में हाँ इतना सोचो मत। दिल में आता हूँ, रूह में आता हूँ, दिमाग में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, तो इन सारी किताबों में से सबसे आपके जो दिल के करीब है या सबसे अच्छी आपको कौन-सी किताब लगती है? दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आप मदर हो, कितने बेटा-बेटियाँ हैं आपको? सर अल्लाह की तरफ से मेरा एक ही बेटा है, अच्छा, अच्छा, एक ही एक ही बेटा है। बच्चा है मेरा। अच्छा, अच्छा, किसी मदर है जिसको जैसे 4-5 बेटे-बेटियाँ हैं, जैसे 2-3 बेटे हैं, 2-3 बेटियाँ हैं, राइट? उसको आप पूछो कि आपको 4-5 में से कौन-सा बेटा-बेटी आपको ज़्यादा पसंद है? तो इसका जवाब क्या आएगा? नहीं सर, फिर भी ये होता है ना कि बाज़ औक़ात हमने कुछ किताबें अभी हमने लिखना शुरू की होती है, हमारी पहली, दूसरी किताब होती है, उसके बाद हमारा एक्सपीरियंस कुछ और हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि भई इस टॉपिक पे जो है मेरे पास ज़्यादा किताबें हैं। उसके बाद हम थोड़ा वक़्त गुज़रता है, फिर हम और भी कुछ और एक्सप्लोर करते हैं, हम कहते हैं कि भई नहीं, इस पर मुझे ज़्यादा हुआ, तो मैं इस हिसाब से पूछ रही थी अच्छा, आपसे। अच्छा। तो मेरी पहली और लास्ट किताब, मेरी पहली किताब है यू आर द सेलिब्रिटी। वो आई अबाउट आफ्टर 46 इयर्स के बाद मेरी लाइफ के, ठीक है? हालाँकि मैं लिख रहा था मेरी ऑटोबायोग्राफी द सेलिब्रिटी गुरु अराउंड ड्यूरिंग माय लेट टीनेजर्स, अराउंड 18-19 का था तब लिख रहा था। हालाँकि वो बुक आई अभी-अभी, वो जुलाई में ही आई है। अभी भी उसकी अ, वो पब्लिशर ने वो भेज दी है कॉपी, अभी मेरे को फिजिकल कॉपी मिली नहीं है, मगर वो फ्रेश फाइनली वो मेरी ऑटोबायोग्राफी है द सेलिब्रिटी गुरु। और पहली बुक है यू आर द सेलिब्रिटी, बिकॉज़ वो मेरी लाइफ में मैंने हज़ारों सेलिब्रिटी से मिलने के बाद वो सबकी वो खाक छानने के बाद वो बुक लिखी थी। और पहला प्यार, पहली बुक सबको प्यारी होती है। और तो ये बात है। सर आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि हम ये जब देखते हैं अपनी कॉमन लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में हैं या हमारे सिस्टम में हम उनसे प्रॉब्लम होती है हमें, या हम सोचते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है। तो कौन सी चीज़ें जो आपको प्रॉब्लम देती हैं, आप सोचते हैं कि भाई ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, इसको चेंज होना चाहिए? सो सोसाइटी में क्या चीज़ें मेरे को प्रॉब्लम देती है, ये आपका सवाल है? मेरे सपने मेरे को प्रॉब्लम देते हैं बिकॉज़ मेरे सपने बहुत बड़े-बड़े होते हैं। ज़िंदगी ऊपर वाले ने दी है, कितने की दी है वो तो वही जाने। हालाँकि ख्वाहिश है 131 ईयर्स जीने की, देखते हैं कब क्या कितना ऊपर वाला जिलाता है। मगर मेरा फिलॉसफी यही है कि ज़िंदगी में ऐसे जी जाओ, और आपको भी ज़िंदगी ऐसे जी जानी चाहिए कि वो हम कहते हैं कि ये बंदा-बंदी इस साल में पैदा हुई है, इसके बाद हम डैश करते हैं और बोलते हैं कि इस साल में वो चली गई और चला गया, ठीक है? तो डैश में इतना बड़ा करूँ, इतना बड़ा करूँ, इतना बड़ा करूँ कि दुनिया मेरे जाने के बाद भी यार ना मेरे बारे में वो आई डोंट नो थीसिस और जो भी माना खोजती रहे कि ये बंदा क्या करके गया है ना, मेरे को जानना है इस बंदे के बारे में। हालाँकि जानने के 1000 ईयर्स हो गए हैं, समथिंग लाइक दैट। और मैं ऑलवेज़ कहता हूँ कि सपने ऐसे देखो कि आपको बच्चे की तरह हँसाए या बच्चे की तरह रुलाए। ऐसे सपने आपके पास नहीं है कि माने ना मिडल ऑफ द नाइट आपको बच्चे की तरह रुलाए या मिडल ऑफ द नाइट आपको बच्चे की तरह हँसाए। तो माने वो आपके सपने वो माने इतने पावरफुल सपने नहीं है। और मेरे फादर ऑलवेज़ कहते हैं कि सूरज पाने के सपने देखो, चाँद-तारे तो यही मिल जाएँगे। थिंक अबाउट हैविंग गोइंग टू द सन मैन, राइट? चाँद-तारे माने सन और स्टार्स और मून, तो यू विल गेट इट इवेंचुअली व्हाइल योर जर्नी टू गो टू द सन, ठीक है ना? तो ये बात है। वो ऑलवेज़ वो भी कहते थे, निशान चूक माफ़, नहीं माफ़ नीचू निशान, कि भई आपने बड़े-बड़े सपने देखे, पहुँचे तो बढ़िया है, नेक्स्ट टाइम वो बड़ा सपना उससे भी देखना, नहीं पहुँचे तो समवेयर अराउंड तो कहीं तो पहुँचोगे ना। रादर देन आपने यहाँ से यहाँ तक का सपना देखा और पहुँच गए भी, तो पहुँचे तो यहाँ तक ही पहुँचे ना, इसलिए उसकी मगर आप मना यहाँ जाने के सपने देखो, यहाँ तक पहुँचे तो बढ़िया है, नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा वो ऊपर जाने के सपने देखना। नहीं पहुँचे तो समवेयर अराउंड पहुँच जाओगे, तो फिर भी वो जहाँ पहले छोटे सपने के सफल होने के बाद पहुँचोगे, इससे तो
फार ही हो ना आप, ठीक है ना? सर मेरा ये सेकंड लास्ट बस क्वेश्चन है आपसे कि आप कब इंडिया से कनाडा आए और आप क्यों आए, इसकी क्या रीज़न थी और आप कैसे आए? हाँ जी, अबाउट एक सवाल में बहुत सारे सवाल पूछ दिए आपने तो। हाँ जी, तो आई केम अबाउट 29 ईयर्स अगो, 23 जुलाई 1996 को मैंने कनाडा में पहला कदम रखा। इसके बाद ऑफ कोर्स ऑब्वियसली दूसरा कदम रखा। मेरा सपना ये था कि यार मैं भी वो नॉर्थ अमेरिकन वालों को बता दूंगा, कनाडा वालों को, अमेरिका वालों को कि भाई इंडिया किस इंडिया क्या है, मदर इंडिया क्या है, माना है ना। और मदर इंडिया का एक बंदा यहाँ आके माना इंडिया के बारे में इतना कुछ आप को बता सकता है, तो माना इंडिया जाओ और देखो यार इंडिया किस भला का नाम है, किस चीज का नाम है, ठीक है। तो एक था कि यार इतना बड़ा कुछ ऐसा कुछ कर जाऊंगा, ठीक है। और सपना ये भी था कि मैं वो मेरी दिल वाली को ढूंढने के लिए नहीं जाऊंगा, वो ढूंढती ढूंढती मेरी झोपड़ी पे आएगी, ठीक है। वो लोअर मिडिल क्लास का बंदा हूँ, झोपड़ी में तो नहीं रहते थे हालांकि, मगर वो इतने माना मेलो में भी नहीं रहता था। एंड आई लव वेयर आई ग्रो, थैंक्स टू माय पेरेंट्स एंड ऑल सिबलिंग्स एंड ऑल द रिलेटिव्स। तो ये बात थी, तो ऊपर वाले ने मेरी बात सुन ली, और वो भी था कि भी वो अमेरिका से होनी चाहिए, मेरी लास्ट नेम वाली होनी चाहिए, पटेल होनी चाहिए, गौरी भी होनी चाहिए। वो तो लड़कों की डिमांड पहले इंडिया पाकिस्तान वालों की होती है। वो गोरा होना वो अलग बात है, मगर उसकी ख्वाहिश तो माना वो बॉलीवुड की एक्ट्रेस जैसी होनी चाहिए, वो होती रहती है। हाँ ठीक है, हालांकि आई नो, हाँ तो ये बात है। तो ये था, और वो मेरी पटेल लास्ट नेम है, उसमें सब डिवीजन है कड़वा पटेल, उसमें भी सब डिवीजन है फोर्टी कड़वा पटेल। तो मेरी वो ख्वाहिश थी कि फोर्टी को फोर्टी कड़वा पटेल होनी चाहिए। तो मेरी पहली शादी में पहली बीबी वही मिली। आ, अमेरिका का सपना था, तो जब मैंने वेडिंग कार्ड देखा था उसमें कनाडा लिखा था कि कनाडा से आई हुई ये मोहतरमा के साथ मेरी शादी हो रही है। तो मुझे जब वो पहली दफा कार्ड देखा, मैं दौड़ा अपने पापा के पास कि पापा पापा ये सी है नहीं, ये क्या है, वो तो यहाँ तो यूएस से होना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका होना चाहिए। तो तब मेरे पापा ने बताया कि बेटा कनाडा एक कंट्री है और अमेरिका कंट्री पर है, एंड तब तक हम दिल दे चुके थे सनम को। तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। बट आई बीन मोर देन 100 टाइम्स इन यूएसए, लाइक वो अभी जुलाई में 10 दिन पहले ही जाजमीन और हम अमेरिका गए थे, कैंकुन मेक्सिको गए थे। तो घूमते रहते हैं, 100 मोर देन 100 दफा एज आई टोल्ड यू बीन टू यूएसए। और वो दूसरी बीबी मिली, वो अमेरिका से मिली। तो मेरा सपना जो था कि गोरी चिट्टी होनी चाहिए, अमेरिका से होनी चाहिए, तो पहला सपना उन्होंने गोरी चिट्टी दी, और कनाडा से दी, और इंडियन वाली थी सेम लास्ट नेम वाली। और दूसरे सपने में वो उन्होंने वो जासमीन दी, वो अमेरिका में पैदा हुई है। तो उन्होंने दो सपने, दो बीवियों के बाद मेरा वो जो सपना था वो पूरा कर दिया ऊपर वाले ने। बहुत बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया और आपके टाइम का और आपकी एनर्जी का बहुत शुक्रिया। मैं आखिरी सवाल की तरफ बढ़ूँगी अपने। तो वो मेरा आखिरी सवाल जो है वो मेरा ऐसा सवाल है जो कि मैं खुद उससे सीखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे सीखने का बहुत शौक है। और आप जैसे जब कीमती लोग हमें अल्लाह की तरफ से मिले, तो उनसे जितना फ़ायदा हो सके हमें उठाना चाहिए। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप आजकल हम यंग जनरेशन से राब्ते में हैं, आप हमारे मतलब बच्चों को भी देख रहे हैं, मिडल एज वालों को भी देख रहे हैं और आप बुजुर्गों को भी देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ये हम जनरेशन है या जो हमसे नेक्स्ट हैं, 25 साल के हो गए, 30-35 के हो गए, 15-18 के हो गए, तो इन लोगों में आपको क्या मतलब कमी महसूस होती है? आप ये सोचते हैं कि भाई अगर ये जनरेशन जो है ये अपनी चीज़ ठीक कर ले, तो ये और अच्छा काम करेंगी। तो वो आप बताएँ और फिर एक जो है नसीहत मुझे भी करें और ये सबको भी एडवाइस जो आप वो करें, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे। तो अपने सुनहरी लफ्ज़ों से मुझे ये समझाएँ प्लीज़। मैं आज के बच्चों को देखता हूँ, स्पेशली वो रियान अल्लाह वाला स्कूल के बच्चों को देखता हूँ। तो मैं उनसे सीखता हूँ पहले तो बराबर, तो मेरे को तो कोई कमियां दिखाई नहीं देती है, पहली बात है, ठीक है। अभी तो आज की जनरेशन है, स्पेशली वो रेहान अल्लाह वाला जैसे वो विजनरी से, लेजेंड से वो सीख रही है, उनकी स्कूलों से, उनकी स्कूल रेहान ये स्कूल जो वर्ल्ड की फर्स्ट ये स्कूल है, उनसे सीख रही है। तो वो माना वो इतनी वो गैजेट में, एआई में, चैट जीपीटी में, कैनवा पोस्ट में, फ्रीलांसिंग में, और वो टेड टॉक जैसे वो बड़े बड़े स्पीकरों की स्पीचेस भी देखते हैं माना एवरीडे। और वो देख के माना अपना वीडियो भी बनाते हैं, वो क्या सीखे वो भी शेयर करते हैं। तो यू नो बहुत कुछ आगे है पहले तो ये तो है। तो मेरे को क्या लगता है कि उनके पास जो
कैसे बताए, हाँ, कि उनका जो मॉडल है वो लेट्स से लैम्बोर्गिनी, फरारी, वो ऐसा वो टॉप नॉच कार की तरह है, ठीक है? मगर जो इंजन है वो माना लेट्स पुट इट दैट वे, उनके पास वो पुराने ज़माने वाले जैसे जो यू नो लेट्स से रेहान भाई की वो जनरेशन के वाले, आपकी जनरेशन के वाले, मेरी जनरेशन के वाले और हमारे भी अम्मी-अब्बू के जनरेशन वालों के लोगों से, पेशेंस से, उनके एक्सपीरियंस से सीखे, तो वो ही लैम्बोर्गिनी, वो ही माना बीएमडब्ल्यू और जो भी ड्रीम कार है उनकी, वो कितनी फास्ट हो जा सकती है, सुपर कार वो बन जाती है, वो जैसे सुपरमैन होता है, बैटमैन और स्पाइडरमैन और सुपरमैन, तो ऐसे वो बन सकते हैं, ठीक है ना? और उसके पास है वो कैपेबिलिटी, राइट? तो वही वही एक बात मैं कर सकता हूँ, एंड कीप ऑन कीपिंग ऑन। और मिस्टेक तो होगी, हमने भी की है, रेहान भाई ने भी की होगी, आपने भी की होगी, तो ऐसा तो कोई बंदा नहीं है कि जो बंदा पैदा हुआ माना बिना मिस्टेक के और गया भी बिना मिस्टेक के। ऐसे लोगों की कभी भी हिस्ट्री नहीं बनती है, ऐसे लोगों को कौन जानता है, ठीक है ना? तो यही बात है। और वो कहता है कि भाई मैंने लाइफ में एक भी मिस्टेक नहीं किया है, तो वो झूठ ही बोलता है अकॉर्डिंग टू मी टू। सच बोलता होगा तो ऊपर वाला जानता होगा, कि मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि भाई मगर मेरे ख्याल में मैं जितने लोगों से अभी तक वो मिला हूँ, हालाँकि कभी किसी ने बोला भी नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूँ और मैंने कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं किया है, ठीक है ना? तो ये बात है, जो एरोगेंस से नहीं कहता कि मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है, तो वो उनका बड़प्पन होगा और वो सिखाए दुनिया को भी कि कैसे माना उन्होंने मिस्टेक नहीं की है, लिखे बुक के और पॉडकास्ट करे, बच्चे-बच्चियों को और हमारे जैसे लोगों को भी गुफ्तगू करें और सिखाए माना। बिकॉज़ कोई आप किसी की बुक पढ़ते हो, तो किसी की बुक के 50 साल की ज़िंदगी आपने वो 2 घंटे में, 3 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में जितने टाइम लगाते हो पढ़ने में, वो आपने जी ली। ठीक है ना? तो यही बात है कि भाई किसी के मिस्टेक से क्यों ना सीखना, रादर देन हम मिस्टेक करें, हम पीछे जाए इसके बाद फिर से, बिकॉज़ एक वन लाइफ, व्हाई नॉट लिव टू द फुलेस्ट, ठीक है ना? तो ये बात है। सर एक सवाल रह गया था, वो मुझे अब याद आया है, वो तो मैं पूछूँगी आपसे ज़रूर। कि एक तो ये कि आपने एडवाइस बहुत अच्छी की है, और ये कि आप मुझे बताएँगे कि वो कौन-सी क्वालिटीज़ हैं जब आप किसी ह्यूमन बीइंग में देखते हैं तो आप उसको देख के खुश होते हैं, या आपके गुड बुक में वो चीज़ें शामिल होती हैं कि अगर किसी इंसान में आपको अच्छी क्वालिटीज़ वो कौन-सी हैं जो मिलती हैं, तो आप सोचते हैं कि इससे मैं फ्रेंडशिप करूँ या इसको मैं अपने गुड बुक में शामिल करूँ? और फीमेल के लिए भी कोई एडवाइस करें आप। ये जो हमारे एरिया की औरतें हैं इंडिया पाकिस्तान की, उनको भी आप कोई ऐसी मतलब नसीहत करें कि वो जो है ना मतलब यानी कि मुझे बताएँ कि भई यानी कि हम कैसे खुद को बेहतर कर सकते हैं? श्योर। किसी के पास स्पिरिचुअलिटी अच्छी हो तो इट अट्रैक्ट्स मी, एंड मैं सीखता हूँ उनसे, ठीक है? बहुत लोगों ने मेरे को कन्वर्ट करने की कोशिश की, भाई आप उम, क्रिश्चियनिटी में आ जाओ, आप इस्लाम में आ जाओ, आ जाओ। मगर मैं क्या हूँ, मैं जान गया हूँ, जानता भी रहता हूँ और वो शेयर करता हूँ, और किसी को भी मैं वो कन्वर्ट करने की वो एडवाइस नहीं देता हूँ, बिकॉज़ वही मेरे गुरु ने एडवाइस दी है मेरे को कि किसी को कन्वर्ट नहीं करना है। मगर जो भी रिलीजन के जो भी बंदा-बंदी है, जो भी पर्सन है, उसको कैसे वही रिलीजन में डीप डाउन जा सकते हैं, वो हम सिखा सकते हैं अगेन बाय गॉड्स ग्रेस, मेरे गुरु ने जो मेरे को सिखाया है। ठीक है? और जो भी मैंने सीखा है, तो ये बात है। तो और पाकिस्तान के चाहने वालों को मेरी यही यही मशवरा है, ठीक है ना? सीख तो नहीं, मशवरा कह सकते हैं कि किसी से कभी भी इम्प्रेस मत हो जाओ पहले तो, ठीक है? कि ये इतना बड़ा है, ये इतनी इसने इतनी बड़ी-बड़ी बुकें लिख किताबें लिख दी गई, ये तो मना समवेयर ओवर है और हम तो मना यहीं पे कहीं पे है। नहीं, 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 नहीं। ठीक है? तो कभी भी डज़न्ट मैटर, सामने माना कोई भी आ जाए। हिंदी जो में तो ऐसा कहा गया, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाएँ? बलिहारी गुरु की जिसने गोविंद मिलायो आज, कि मेरे सामने आज भगवान खुद आ जाए और मेरे गुरु आ जाए, तो मैं पहले गुरु को ब्लेसिंग लूँ, गुरु का ब्लेसिंग्स पहले लूँगा। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ मेरे गुरु की वजह से खुद भगवान मेरे सामने आज खड़े हैं। ठीक है ना?
तो इवन भगवान भी आपके सामने आ जाए तो भी माना इतना वो नहीं माना, या रिस्पेक्ट करना है। मगर जिसने हमें उस तक ले गया उसको पहले रिस्पेक्ट देनी है कि भगवान आप वेट करो, अल्लाह आप वेट करो, पहले मेरे को उनका शुक्रगुजार करने दो कि जो लोगों की वजह से, जो औलिया की वजह से, जो पीर की वजह से, जो माना एक जमाने में स्ट्रेंजर थे मगर उन्होंने मेरे को माना वो जैसे वो जौहरी था, वो माना हीरा बनाता है, को जैसे वो बना मूर्ति बनाता है, शिल्पीकार होता है, तो उन्होंने मेरे को टाँका और उसका मैंने वो सीखा जो जो माना, और वहां तक इसकी वजह से आप अल्लाह आप मेरे सामने आए, कि भगवान आप मेरे सामने आए, कि माना जिस आप मेरे सामने, तो ये बात है। ठीक है ना, मैंने ये कॉमन मोस्ट कॉमन देखा है, और रिस्पेक्ट भी है। मैंने बहुत सुना है कि भाई, और फील भी किया है कि पाकिस्तान के लोगों की हॉस्पिटैलिटी इतनी बड़ी है, बहुत बड़ी है, तो हॉस्पिटैलिटी की वजह से भी करते होंगे। मगर फिर भी हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटैलिटी है, वो भी बताओ। मगर ये भी है कि बहुत सारे वो लोग कहते हैं कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। मेरी कहाँ थी, मेडिकल कॉलेज में मेरे प्रोफेसर इंग्लिश में क्या पढ़ा रहे थे, मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ता था, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। मेरे को बिकॉज ऑफ इंग्लिश की वजह से इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स हो गई थी कि यार वो मेरे प्रोफेसर इतना पैरट की तरह पट 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 करते हैं यार। मेरे ऊपर वाले ने दो कान दिया है, एक कान में से आता है दूसरे कान में चला जाता है, दिमाग में तो कुछ रहता नहीं है। मेरा बाप मेरे को डॉक्टर बनाने का चाहता है, या मेरे को जीने का, सांस लेने में तकलीफ होती है, क्या करूँ यार, है ना, बिकॉज ऑफ ये सब प्रेशर की वजह से। मेरे दोस्त है वो इंग्लिश मीडियम से है, वो बड़े बड़े डॉक्टर के, इंजीनियर के, लॉयर्स के बेटे है, इंग्लिश मीडियम से आए, तो उनकी भी इंग्लिश भी पैरट की तरह पट 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 है। वो पहला दूसरा तीसरा नंबर लाते हैं। मैं वो पूरी जिंदगी माना पहला दूसरा तीसरा नंबर लाता रहा। अब माना वो मुन्ना पे एमबीबीएस की तरह माना हो किसी की हड्डियां बढ़िया तो नहीं तोड़ता हूँ, मगर फेल पे फेल, फेल पे फेल, फेल पे फेल, फेल पे फेल हो रहा हूँ। मगर वही बंदा अपनी पहले किताब लिखता है, दूसरी 15वीं किताब लिखता है, सभी किताबें इंग्लिश में लिखता है। ठीक है, तो इफ आई कैन ओवरकम माई इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं वो इंट्रोवर्ट था, किसी भी जनानी से कभी भी वो बात नहीं करता था, बहुत शाय था। मगर वो मैंने बहुत सारी जनानियों से, बहुत सारी बेटियों से, बहुत सारी बहुओं से, बहुत सारी अम्मियों से इंटरव्यू दिया। तो इट्स लाइक लाइफ इज अबाउट डिस्कवरिंग, जो भी मैंने अपना कॉलिंग है वो डिस्कवर करो। वो कॉलिंग डिस्कवर करते करते छोटी छोटी जो भी वो बीच में वो आएगी, फेम भी आएगा, वो भी आएगा, मगर बहकना है कि नहीं बहकना है वो आपको देखना है। बिकॉज बहुत सारे लोग बहक गए, बड़ी बड़ी सफलता आने के बाद कहाँ चले गए किसी को भी मालूम नहीं है। कई माना शराब में डूब गए, कई माना ड्रग्स में डूब गए, कई माना सुसाइड कर दिए। बिकॉज सफल होना एक बात है, द जर्नी रीचिंग टू द सक्सेस, और सफलता पे बहुत लाइन टाइम तक टके रहना, जैसे अमिताभ भी टिक रहे, दिलीप कुमार जी टिक रहे, शाहरुख टिक रहे, ऐसे टिकना भी। और इस स्ट्रेटेजी, बिकॉज जब आप बड़े बड़े पर्वतों पे जाते हो तो वहां पे बहुत सारे लोग नहीं होते हैं। एट द बेस कैंप पे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, आप भी अभी भी हिमालय के बेस कैंप पे अभी भी जाओ इस मोमेंट पे, तो आपको मिल जाएंगे 10-12 हजार लोग में भी, 5,000 लोग में भी, 1,000 लोग। मगर अभी भी राइट नाउ इसी मोमेंट पे टॉप ऑफ द एवरेस्ट एट द हिमालयाज 8,484 8,484 मीटर पे ओनली, माना कई लोग हो गए जो लेस देन 10 हो गए, मे भी शायद 1 हो गए, मे भी शायद कोई नहीं होगा इस मोमेंट पे। सो यही बात है, और यही सक्सेस पाना, सक्सेस पहुंचाना, और एंजॉय द जर्नी ऑफ द सक्सेस। और सक्सेस पाने के बाद लेकिन कैसे आप सर करते हैं बड़े बड़े पर्वत, फ्रॉम टिप टू टिप टू टिप, पहुंच गए इस पर्वत की टिप पे, तो माना नेक्स्ट पर्वत की नेक्स्ट टिप पे जाओ, उससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, और एक दिन माना वो सर कर जाओगे हिमालय, एवरेस्ट, और जो भी बना आपका सपना है। 10,000 आवर्स लगाओ जो भी आपका सपना है उसके बारे में, 3 साल, 10,000 आवर्स, एंड दुनिया की कोई भी ताकत एक्सेप्ट अल्लाह रोक नहीं सकती आपको, जो भी पाना है। थैंक यू वेरी मच सर, आपके टाइम को बहुत शुक्रिया। आपने बहुत कीमती बातें की और आपकी बातें वाकई ही ऐसी हैं कि जो कि हमारी लाइफ में काफ़ी चेंज ला सकती हैं। तो बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं अपनी इस स्ट्रीम को ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपसे दोबारा मुलाकात होगी, हम मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।